Good afternoon, my dear students. Myself, Dr. Girish Goyal, Assistant Professor, Department of Agronomy, School of Agriculture, IIT University, Gwalior. Students, I hope you all are good and stay at home safely. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और आप अपने से बड़ों का जरूर ख्याल रख रहे होंगे. Student, today I am going to start our subject Rave crop production for BSc Agriculture 7th semester. Students, so let's just start our topic about cultivation of mung bean crop part 1. Students, I will introduce all content one by one, and first introduction, and second crop status, and third nutritive value, and next state wise recommended varieties, next climate requirement, and next soil type and field preparation, and next sowing time, next seed date and spacing, next seed treatment, and next outlines, and then reference. Students, I will introduce all content one by one. Okay, so students, before starting the topic, I want to telling you about some introduction of mung bean crop. Okay, so students, first of all, botanical name of mung bean, Vigna redita, and family legume family है, and origin Indian Central Asia. Okay, so focus is slight introduction. Okay, so students, introduction. Students, green gram is excellent source of high quality protein. Mung bean is consumed as whole grains, is brought out from as well as dal in a variety of way in homes. Students, it is also used as green manuring crop. Mung can be used as a feed for cattle. Even husk of the seed can be soaked in water and used as cattle feed. Students, in India these crops are cultivated in three different seasons like Kharif, Rabi, and summer. Students, summer mung can be grown after harvesting of pea, gram, potato, mustard, linseed. Cultivation of Jayat mung is important to increase soil fertility in this area where paddy wheat crop rotation in is used. Okay, so students, ये था थोड़ा सा. Students, mung bean is one of the most important pulses crops for protein supplement in subtropical zone of the world. Students, it is widely grown in India subcontinent as a short duration catch crop between two principal crops. Mung bean contains 51% carbohydrate, 24 to 26% protein, 4% mineral, and 3% vitamin. Okay. So student, this is a introduction. Okay, so next content है हमारा crop status. Okay, so students, during 2017-18, the total coverage under mung bean has the about 41 lakh hectare with a production of 19 lakh ton. Students, there has been phenomenal increase in area of mung bean in the country from 2015-16 onwards. Students, Rajasthan with greater than 42% area and 39% of production outside in the total mung bean contribution in the country during year report. Students, more than 80% of mung bean production comes from the 10 states of like Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, Odisha, and Telangana. Okay, so students,
this is table format. So students, state contribution in area production mung bean during 1718. Okay, so students, they are different type states and area. फर्स्ट एक तरफ एरिया हमारा, एक तरफ प्रोडक्शन है. सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारा स्टेट्स है वो डिफरेंट स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट कवर कर रहे हैं. ठीक है. और स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रोडक्शन दिया है वो हमारा जो एरिया है वो हमारा लाख हेक्टेयर में है, जो प्रोडक्शन है वो लाख टन में है. जैसा कि स्लाइड में राइट साइड में ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, जो हमारा एरिया है वो लाख हेक्टेयर में है, जैसा कि अभी मैंने इससे पहले स्लाइड में बताया. प्रोडक्शन है जो लाख टन्स में है. ओके. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थान एरिया में स्टूडेंट्स राजस्थान हमारा फर्स्ट नंबर पे है. एरिया में कितना एरिया कवर किया इसने? 17.19. ठीक है. कितना? लाख हेक्टेयर, क्योंकि एरिया हमारा लाख हेक्टेयर में, इसलिए 17.19 लाख हेक्टेयर. वही बात करें हम लोग प्रोडक्शन में, तो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, लाइक 7.42. कितना? लाख टन्स. बट इनमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो, बट कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ. बट आपको सीधा मैं बता रहा हूँ, एक तरफ टेबल एरिया का है, सेकंड तरफ प्रोडक्शन की है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया हमारा लाख हेक्टेयर में है, प्रोडक्शन है जो लाख टन्स में है, बस. तो स्टूडेंट्स एरिया में फर्स्ट हमारा स्टेट लीड कर रहा है राजस्थान, प्रोडक्शन में भी हमारा फर्स्ट लीड कर रहा है राजस्थान. सेकंड पे एरिया में लीड कर रहा है महाराष्ट्र. कितना एरिया कवर किया है इसने? 4.53 लाख हेक्टेयर. वही बात करें हम लोग प्रोडक्शन में, तो सेकंड पे मध्य प्रदेश ने कवर किया है. कितना एरिया? 2.20 लाख टन्स. ओके. सो स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट आता है एरिया में कर्नाटका, मध्य प्रदेश. स्टूडेंट्स, हम यही बात करें, एरिया में हमारा मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे यानी फोर्थ नंबर पे है. कितना एरिया कवर किया है? 2.97 लाख हेक्टेयर. और यही हम बात करें, चौथे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र है, बिहार है, जो इसने प्रोडक्शन पे कवर किया है 1.05. सो स्टूडेंट्स, उसके बाद उड़ीसा है एरिया में, तमिलनाडु है, बिहार है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, अदर्स है. दे आर डिफरेंट टाइप एंड दे आर डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ एरिया कवर लाख हेक्टेयर. सो ऐसे ही प्रोडक्शन भी है, दे आर डिफरेंट स्टेट्स एंड नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ एरिया लाख टन्स लाख टन्स में जो कवर किया है स्टूडेंट्स. तो सो दीज आर टोटल ऑल इंडिया एरिया covered lakh hectare during 1718, like 40.70 लाख हेक्टेयर एरिया. एंड प्रोडक्शन में स्टूडेंट्स ऑल इंडिया हुआ है 19.01 लाख हेक्टेयर. ओके, कवर्ड. तो स्टूडेंट्स एरिया और प्रोडक्शन का 2017-18 का डाटा ये आपकी स्क्रीन पर है. स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसमें से स्टूडेंट्स हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे लाइक 10 पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे. ठीक है. और लास्ट 11, तो 11 यानी कि कितना हुआ? 12 और 22. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 22 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कैसे पूछ दे अगर राजस्थान का जो 17-18 में एरिया कितना कवर्ड हुआ है, तो आप बता सकते हो 17.19. अगर वही पूछ दे प्रोडक्शन में कितना किया है, तो बता सकते हो वो भी राजस्थान है, और कितना कवर किया है? 7.42 लाख टन. ओके. तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, जो एरिया कवर किया हमारा लाख हेक्टेयर में है, प्रोडक्शन है हमारा वो लाख टन में है. ठीक है. एक पॉइंट से दो क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स ये आपके मोस्टली हम लोग एग्ज़ाम में भी फुटअप करते हैं, क्विज में भी फुटअप करेंगे, और आने वाले आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि करंट के डाटा होते हैं, एक साल पहले 2 साल पहले के भी, बैक डेट के भी करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. क्योंकि स्टूडेंट्स ये एग्रीकल्चर है, कहीं से भी आ सकता है. ठीक, कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि सारा आपके फील्ड से रिलेटिव है, क्योंकि एक पोर्शन डाटा का भी होता है स्टूडेंट. ठीक है ना. सो स्टूडेंट्स लाइक कि मैंने सोर्स लिया है एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर
वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1718 थर्ड एडवांस एस्टीमेट। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे आप लोग कोई इसमें से अभी बीएससी करके एमएससी में जाएंगे तो आप लोग थीसिस वगैरह अपनी लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कोई भी रिव्यू पेपर या बुक कैप्चर आर्टिकल लिखेंगे, तो लाइक आप उसमें से इसमें से आप देख कर अपना ये एरिया प्रोडक्शन लिख सकते हैं। और नीचे सोर्सेस में रेफरेंसेस में जो नीचे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सोर्स है, उसमें लिख सकते हैं कि आपने यहाँ से मैंने कॉपी की, यहाँ से लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्टेट कंट्रीब्यूशन एरिया प्रोडक्शन मूंग बीन 1718 का। ठीक है, इसी के बाद स्टूडेंट्स है, इसी का जो वो टेबल फॉर्मेट में था, ये ग्राफ फॉर्मेट में था। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना है, चीज़ एक ही है। मैंने इसलिए बताया कि वो टेबल फॉर्मेट में था बट ये ग्राफ फॉर्मेट में। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, आप दोनों देखकर समझ गए होंगे, क्योंकि जितना एरिया का कवर हो गया उसको उसी ट्रेंगल से उसमें फिलिंग किया गया। जैसे हमारा महाराष्ट्र है 11 है, कर्नाटका 10 है, उसी हिसाब से इसको फिल किया गया, आपका शो भी हो रहा होगा। ठीक है ना, जैसे हमारा राजस्थान एरिया में अभी पहले था, तो भाई इसमें जो एरिया का है देख 42% है, ये पहले है। प्रोडक्शन में भी हमारा राजस्थान पहले था 39, तो इसमें भी ज़्यादा है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, वो टेबल फॉर्मेट में है और ये ग्राफ फॉर्मेट में है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिटिव वैल्यू। देयर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू लाइक प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, क्लोरोफिक वैल्यू एंड मॉइस्चर। स्टूडेंट्स फर्स्ट है प्रोटीन 24 से 25% and fat 1.3% and minerals 3.5% and fiber 4.1% and carbohydrate 56% and calcium 124 mg upon 100 gram and phosphorus 326 mg upon 100 gram and iron 7.3 mg upon 100 gram and calorific value 334 kcal upon 100 gram, moisture 10%. okay, सो दे आर न्यूट्रिटिव वैल्यू। ओके, स्टूडेंट्स इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम पूछते हैं कि हाउ मेनी के प्रोटीन परसेंटेज ऑफ मूंग बीन क्रॉप, तो आप बता सकते हो 24 से 25% एवरेज। ठीक है, फैट बता सकते हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बता सकते हो आप लोग। ठीक है, मॉइस्चर बता सकते हो कितना परसेंट होता है। तो दे आर डिफरेंट न्यूट्रिटिव वैल्यू। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स state wise recommended varieties. So they are different type state and they are different season like kharif, rabi and summer. okay, so students first state है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वो खरीफ सीजन में हम लोग कौन सी वैरायटी रिकमेंड कर रहे हैं? पंत मूंग 5, ठीक है, पंत मूंग 4, नरेंद्र मूंग 1। समर में हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं हम 16, IPM 23, PDM 139, मेहा हम 12 एंड पंजाब में कर रहे हैं IPM 23, MH 215 ml 818 ml 613 एंड सेकंड समर में कर रहे हैं SML 668 IPM 23 पंत मूंग 5। स्टूडेंट्स राजस्थान में हम लोग का कवर कर रहे हैं SML 668 एंड IPM में 23 RMG 492 MH 215। स्टूडेंट समर में हम लोग कवर कर रहे हैं SML 668 PDM 139 मेहा, SEM MP छत्तीसगढ़ में कवर कर रहे हैं हम 1 TJM 721 BM 4 मेहा। So they are different states and they are different season खरीफ, रवि and summer। ठीक है, ये हम रिकमेंड कर रहे हैं। So this is state wise recommended varieties। okay, next students climate। okay, so students the crop needs high temperature, less humidity and moderate rainfall of about 60 to 80%। students waterlogging is fatal for root developed and nutrient fixation during early vegetative stage। crop is generally grow as rain feed but is under assumed irrigation during summer in Indo-Gangetic plains of northern India। so this is climate requirement। okay, next students soil type and field preparation। okay, so students
Best soil for its cultivation is loam soil with good drainage. The crop should not be raised on alkaline, saline, or waterlogged soil. Students, a well-prepared seed bed is required for proper germination and establishment of the crop. Students, for this give 2 to 3 plowing followed by planking to make the seed bed free from cloud the weeds. For the summer spring cultivation after the harvesting of last crops, the tillage should be done after irrigation. So students, this is a soil type and field preparation. एंड नेक्स्ट है हमारा स्विंग टाइम. Okay, so students, sowing time movement should be shown during the last week of June to mid of first week of July. For the summer or spring crops, movement should be shown after the harvest of last crop, potato, sugarcane, mustard, and cotton, etc. Student, the first fortnight of March is most suitable for spring summer cultivation. Late soil movement takes more loss at the time of flowering stage due to high temperature and yield effect. Students, so this is just sowing and time. Next, students, seed rate spacing and method. So students, there are different number of different kg seed rate, and students, first during kharif season 15 से 20 kg seeds per hectare should be sown as row 45 centimeter apart. Students, while during rabi and summer season 25 to 30 kg seeds per hectare sown in rows 30 centimeter apart. Students, as a companion crops with sugarcane seed rate should be 7 to 8 kg per hectare. The plant to plant distance should be maintained at least 5 centimeter. Students, sowing can be done behind the local plowing or with the help of seed drill. Students, so this is a seed rate and spacing method. Okay. स्टूडेंट्स, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हो, काफ़ी आसानी से आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सीड ट्रीटमेंट. सो स्टूडेंट्स, treat the seed with the theorem 2 gram plus carbendazim 1 gram or carbendazim capton 1 gram plus 2 gram to control the soil and seed germinated disease. Students, for sucking pest control, seed treatment with imidacloprid 70 Ws at the rate 7 gram per kg seed. Students, it is also desirable to treat the seed with ribosium and PSB culture 5 to 7 gram kg per seed. Students, so this is seed treatment. Okay, so student, next outline. So students, first of all, seed deep summer plowing once in 3 years, and second, seed treatment should be done before sowing. सही समय पर हम लोग करें, समय से और पहले हम सोइंग के पहले सीड ट्रीटमेंट करें. सो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट वैल्यू. स्टूडेंट्स, हमको जो भी एप्लीकेशन फर्टिलाइजर रिकमेंड कर रहे हैं वो हम लोग सॉइल टेस्ट के रिगार्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं कौन से हमको रिक्वायरमेंट है, कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, कौन से फर्टिलाइजर का हम लोग अप्लाई करना है, सॉइल टेस्ट से पता चल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इन खरीफ सीजन शोइंग शुड बी डन बाई राइज एंड फॉरो मेथड. ठीक है, हम लोग राइज एंड फॉरो मेथड यूज कर सकते हैं खरीफ सीजन में. So students, next, yellow mosaic resistant tolerant varieties Narendra Moong 1, Pant Moong 3, PDM 139, Samrat PDM 1, Moong 2 ML 337, IPM 0214, MH 4421, SML 832. Students, it is a choice as per sustainability of region. Okay, so student, जैसे नेक्स्ट हमारा वीट कंट्रोल शुड बी डन एट राइट टाइम. सही समय पर हमको वीट का कंट्रोल करें, चाहे वो दिया डिफरेंट टाइप ऑफ वीट कंट्रोल लाइक कल्चरल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो. कोई भी वीट कंट्रोल कर रहे हैं तो हमको सही समय पर यानी राइट टाइम को हम पे वीट कंट्रोल करना है. सेकेंड स्टूडेंट, एडॉप्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर प्लांट
प्रोटेक्शन, सही समय पर हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच प्लांट प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा फॉर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू डिस्ट्रिक्ट KVK एंड नियरेस्ट KVK। स्टूडेंट्स, हमको जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटिव, अच्छी प्रोडक्शन चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हमको पता है, तो स्टूडेंट्स हमको अपने नियरेस्ट KVK में किसी विज्ञान केंद्र वहाँ जाके पता कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने कोई नियरेस्ट रिसर्च स्टेशन हो वहाँ पे जाके हम लोग पता सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी चल रही हो उसके रिगार्डिंग कोई हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ फिनिश, ओके, एंड दिस रेफरेंसेस को। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप इसे अच्छे से वीडियो देखेंगे, सुनेंगे भी। तो कल्टीवेशन ऑफ मूंग बीन पे है पार्ट 1, तो इसके बाद पार्ट 2 लेकर आऊँगा आपके लिए, हो सकता हो तो पार्ट 3 भी आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप प्लीज़ आप इसे पढ़ें, कोई डाउट लगेगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।